प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू में स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद चैप्टर 2 आगे हम बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बाकी हैं और जो टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ दैट इज एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ओके, तो दिस इज अ कैपेसिटर। This is a capacitor with capacitance C. With capacitance C. So these are two plates of the capacitor. This is plate number 1 and this is plate number 2. So at this plate, suppose charge is Q plus Q, and at this plate number 2, charge is minus Q. तो अब बेसिकली क्वेश्चन बच्चों पहला ये है कि यहाँ चार्ज आया कैसे। इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज। तो ये चार्ज आया कहाँ से? ये चार्ज आया बैटरी के द्वारा जो वर्क किया गया, वर्क डन बाय द बैटरी। तो इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा, बैटरी ने वर्क किया होगा और वर्क यहाँ हमें मिला इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज। तो अब यहाँ पर ये आया कैसे होगा? बैटरी ने क्या किया होगा कि चार्ज को ट्रांसफर किया होगा फ्रॉम प्लेट 2 to 1। सो चार्ज कैसे ट्रांसफर किया गया होगा? क्यू चार्ज, यहां से क्यू चार्ज ट्रांसफर किया फ्रॉम प्लेट 2 to 1। तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर किया है। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। जो भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में वो एनर्जी स्टोर होगी। तो इसके लिए मैं एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेता हूं कि किसी टाइम यहां पर इस प्लेट पर चार्ज क्यू प्राइम है, इस पर माइनस क्यू प्राइम है और मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस डी क्यू। तो नेक्स्ट, at any time charge on plates या चार्ज ऑन, ऐसा बोल देते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल्स क्यू प्राइम और कैपेसिटेंस कितना है? C। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड पोटेंशियल डिफरेंस is V prime. Okay, so now I can use the formula C equals Q over V। ये बताया था मैंने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, C equals Q over V। तो यहां से C equals कितना हो जाएगा? Q prime over V prime। और V prime कितना होगा? V prime equals Q prime divided by C। Now I will find work done in moving charge dq from plate 2 to 1। So work done in moving charge dq from plate 2 plate 1 from plate 2 to plate 1। Okay, then it is small charge, so work done will be very small. So I am representing this work by dw। So dw equals work equals potential। what is potential? V prime। और चार्ज क्या प्रूव कराया हमने? dq। so okay, it is dw small work equals V prime into dq। and what is the value of V prime? Q prime over C। so dw equals Q prime divided by C into dq। और यदि हमें इस पर लेकर आना Q और यहां पर माइनस Q, देन वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम 2 to 1। 2 to 1 मीन्स प्लेट 2 to प्लेट 1। देन W इक्वल्स, तो अब कैसे करेंगे इसको? यूजिंग इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग दिस Q प्राइम ओवर C इंटू डी क्यू। और कितना चार्ज मूव कराया? 0 to Q। सो लिमिट विल बी 0 to Q। सो इट इज W इक्वल्स इंटीग्रेशन लिमिट्स
with limit 0 to q, q prime over c into dq. And c is the property of this capacitor and this is constant. So I can take in outside c. So 1 over c, 0 to q, q prime and dq. Then what will be the integration? So w equals 1 over c constant और इस q का इंटीग्रेशन okay if this charge was q prime then potential v prime then small charge that is dq prime, okay, dq prime. So this will also dq prime. So integrating this will q prime square divided by 2, q prime square divided by 2. So w equals 1 by 2c, 2 taking outside, 1 by 2c, and it is q prime square minus 0 square. ऐसा क्या हुआ? First upper limit, so q prime is q, and this is next 0 lower limit, so 0 square. So w equals q square by 2c. So this is the work done by the external agency, and that will be the capacitance, that will be the energy stored. So energy stored U equals half q square by c. So this is the energy stored inside the कैपेसिटर. तो इतनी एनर्जी स्टोर होगा यदि इतना चार्ज हमें प्लेट्स पर इसका लेकर आना. नेक्स्ट I will find this relation for C and V. So I will put the value of Q, and from here Q is CV. So Q equals C into V. So U equals half C square V square divided by C. So 1 C cancels this, and U equals half C V square. So this is another form of this expression in terms of C and V. Now I will find in terms of Q and V. Okay, Q and V. So I will eliminate C. So what is C? Again from here C is Q over V. So I will put Q over, in place of C, Q over V. So Q over V into V square, and here V cancels V. So U equals half Q into V. So these are three expressions for energy store. First one in terms of Q and C, and that is U equals half Q square by C. And second in terms of C and V, and that is U equals half CV square. And last in terms of Q and V, that is U equals half Q into. प्यारे बच्चों, अभी हमने एक एक्सप्रेशन किया और वो एक्सप्रेशन था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और उसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन किया था that was U equals half C V square. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एंड दैट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी. तो अभी प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया कि कोई कैपेसिटर है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, और उस पर चार्ज हमने किया है प्लेट 1 पर. इस प्लेट को 1 हमने बोला था, इसको 2. प्लेट 1 पर प्लस Q चार्ज, इस पर माइनस Q चार्ज. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस था दैट वाज V. तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी? दैट वाज U इक्वल्स हाफ C V स्क्वायर. तो हम देखना चाहते हैं कि एनर्जी का डेंसिटी कितना है, एनर्जी डेंसिटी कितनी है. एंड एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. So it is defined as the energy stored per unit volume. So energy density equals energy stored divided by volume. So energy density is generally denoted by small u.
स्मॉल यू इक्वल्स एनर्जी स्टोर को हमने डिनोट किया था कैपिटल यू से, एंड वॉल्यूम जो कैपेसिटर है इसका कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लेट एरिया इनटू सेपरेशन। तो सेपरेशन हम कितना लेते हैं ये d, और प्लेट एरिया कितना लेते हैं a। सो दिस वॉल्यूम विल बी a इनटू d, ओके, एरिया इनटू डिस्टेंस, दैट विल बी द वॉल्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो स्मॉल u इक्वल्स, नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, दैट इज हाफ c v square, ओके, u equals half c v square divided by 18, and that will be equal to half, this is half, and c v square divided by a into d, and u equals half. Now I am putting the value of c, capacitance of the parallel plate capacitor, and that is half, that is c equals a epsilon naught divided by d into v square and divided by a into d, okay, and this will half, and a epsilon naught v square and divided by, ये multiply होगा d into d और a, so d into d becomes d square and this is a, so d square into a, so a cancels a, and u equals half epsilon naught v by d whole square, v by d whole square, and what is v by d, it is electric field. So u equals half epsilon naught, and this, that is v by d becomes e, so e square. So this is the expression for energy density, this is the expression for energy density. और ये हमने किसके लिए प्रूव किया है, किसी कैपेसिटर के इनसाइड जो एनर्जी है उसका डेंसिटी कितना है, बट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन चाहे कुछ भी हो, ये ईच कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सप्रेशन वैलिड है, दैट इज u इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर 2 में कुछ भी अभी सीबीएसई का जो नया सर्कुलर आया है उसमें कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं, तो चैप्टर 2 में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं हुआ है, और चैप्टर 1 में एक टॉपिक डिलीट किया है, एंड दैट इज जो मैंने लास्ट में कराया था फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में, एंड दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। तो उस टॉपिक को आप छोड़ देना, उसको आपको कवर नहीं करना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ सीबीएसई, ओके।